جو رشتہ آیا ہے یہ پسند ہے؟ تو آپ یہ چیزیں میرے لیے نہیں لائے کیا؟ ڈرو نہیں، میں یہ سارا سامان تمہارے لیے لایا ہوں تاکہ تمہاری ساری حسرتیں ان چیزوں پر ہی نکل جائیں۔ پھر بھی انہوں نے ادھر ادھر سے اتنی تحقیق کی ہے، اتنی پوچھ گچھ کی ہے کہ میں تو ڈر گیا ہوں۔ اتنی تفتیش تو کوئی کسی قاتل کی بھی نہ کرے۔ ہے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رشتوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آمنہ کا رشتہ دیکھنے آ رہے نا کچھ لوگ، ایسے بیچ میں نہ آ جائے، کوئی بات نہ کرتے، بہت خاندانی لوگ ہیں وہ خاندانی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے اٹھانا دیتے ہیں، میں اپنی مرضی سے تو یہاں نہیں آئی نا، آپ خود ہی اٹھا کے لائے ہیں۔ آپ کس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں؟ یہ تو 15 لوگ کے واپس اسی گھر میں آئے گا جب اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے گی۔ اب میں یہاں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے تو جی بڑی خوشی ہے کہ جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ کہیں اور جڑ گیا ہے، کم از کم اب مجھے کوئی تانا نہیں دے گا۔ ورنہ ان کے صحافی کو خریدو، ان کے افسر کو خریدنے کا ہے، کچھ بھی کرنے کا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہونے کا ہے کہ یہ شپ دبئی آئے تھا۔ معلوم تیرے کو اس کی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ میں سمجھ گیا تھا، سمجھ گیا تو فون لگنا اس کو۔ کیپٹن شیراز، اچھی بات، ایک تیر سے دو شکار۔ غنی بابا بہت تھک گیا ہوں میں، بیٹی گھر سے چلی جائے تو کہتے ہیں قسمت چلی گئی، برکت چلی گئی۔ ہاں بابا، بیٹیاں اللہ سے کی رحمت ہوتی ہیں۔ گھر خالی خالی لگتا رہتا ہے۔ چلو صحیح، اللہ صحیح نعمت نواز کو اللہ دے گا تو رونق پھر ہو جائے گی۔ آج پہلی دفعہ اپنے آپ کو بہت بوڑھا محسوس کر رہا ہوں میں۔ سلام باسائیں۔ السلام علیکم باسائیں، دبئی جانے کا پروگرام کیا بنا؟ ابھی تم چلے جاؤ بابا، 2-4 دن میں ہم بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے باسائیں، میری 1-2 میٹنگز ہیں، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو بیٹا، وہ سیٹھ قادر کے بیٹے کے ساتھ میں میٹنگ نہ کرنا۔ باسائیں صرف بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ بابا وہ ریتلا ناگ ہے، ریت جیسا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کی ہیروئن پکڑی گئی، اب خلیجی ریاستوں میں اس کے پاؤں جم نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ یورپ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے۔ ایسے حالات میں بابا اس سے ملنا خود کو مشکوک بنانے والی بات ہے۔ میں جانتا ہوں باسائیں، اس نے اس کیس سے بچنے کے لیے بڑی رقم خرچ کی ہے، بڑے افسروں کی کوٹھیاں بن گئی ہیں راتوں رات۔ ہاں بابا، شاباش ہے اس صحافی کو جس نے ان کی خبر لگا دی۔ شک میں تو ڈال دیا نا اس نے، لیکن بات صحیح، اس دفعہ نادر بچ جائے گا۔ وہ شیراز سے کہنا کہ ذرا ہوشیار رہے، اس نے سیٹھ قادر کی ہیروئن پکڑوائی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس پر چھپٹا مارنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ دیکھو بابا صحیح، اپنا شیراز شیر جوان ہے بابا، میں اس کو ساری ہسٹری سمجھا دوں گا۔ نہ غنی چاچا نہ، اس کو کچھ بھی بتانے کی یا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اسے کس طرح بتا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ تم جاؤ، جانے کی تیاری کرو گا۔ ارے بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟
अरे नहीं दुल्हन 3 दिन हुए शादी को, किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आंटी आखिर कब तक मुझे घर में मेहमान बना के रखेंगे? बेटा ये सब मुलाजिम किसके लिए हैं? मुझे घर में काम करने की आदत है, और वैसे भी मुलाजिम चाहे कितने भी हों, अपने हाथ से काम करने का मजा ही कुछ और है। वो तो है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। आंटी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो ये मेरा अपना ही घर है। वो तो तुम्हारा ही घर है, लेकिन अभी चलो जाओ, शाबाश, ये मैं देखती हूँ। अरे ये क्या, आपने बताया ही नहीं कि आप आज ड्यूटी पर जा रहे हैं? भाई मैं अगर आपको बता देता कि मेरी ड्यूटी है तो आपने तो मुझे जाने ही नहीं देना था। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया। बस इतनी सी छुट्टी थी? भाई छुट्टी से आदमी सुस्त हो जाता है, और फिर मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि ज्यादा रिलैक्स ही नहीं कर सकता। हाँ लेकिन वो आपने कहा था ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और अभी 1 हफ्ते बाद छुट्टियां ड्यू हैं, उसमें चलेंगे। ओके? ये बात आपने याद रखनी है। मुझे याद है, आई प्रॉमिस। आ जाओ भाई, मैं डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगवा रही हूँ, वहीं चल के नाश्ता। हाँ मुझे याद आया, इसको समझा दो ये किसी काम में हाथ ना लगाए, अभी नई दुल्हन है। आंटी मैं फारिग नहीं बैठ सकती। फारिग नहीं बैठ सकती तो फिर हम तुम्हारे लिए कोई और काम सोच लेंगे। हाँ प्लांट्स देख लिया करो, ये कैसा आइडिया है? हाँ ठीक है। चलो आ जाओ तुम लोग नाश्ता। देख मुन्ना, एक बात सुन अपन का, जितनी तेजी से दुश्मन अपन के कोर्ट में बॉल फेंकता है, उतनी तेजी से उस बॉल को दुश्मन के कोर्ट में वापस फेंकने का है। ये गेम का उसूल है। क्या? आई नो दिस। लेकिन नहीं, इसके लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सा जाल तैयार किया है। ना मुन्ना ना, अरे जो जाल अपन को नहीं लाया उसके लिए, वो बहुत मजबूत है, बहुत कड़क है। उस जाल का चेहरा नहीं कराएंगे आप मुझे? बताएंगे तेरे को। पर अपन सोचता है कि अगर खलीजी रियासतों में अपन हेरोइन स्मगलर मशहूर हो गया तो इधर रहना अपन के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात का डर तो मुझे भी है कि शाहनवाज इस मौके से फायदा उठा सकता है। इसका बंदोबस्त अपन कर लिया है। शिराज का कत्ल होगा और एफआईआर शाहनवाज और उसके बेटे के खिलाफ कटेगी। कैसे हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? हो सकता है मन्ना, सब कुछ हो सकता है। हाँ लेकिन इससे पहले कैप्टन शिराज की मां को हमें कन्विंस करना होगा कि उसका बेटा एक स्मगलर का दामाद होने जा रहा है। इस पर काम चालू है मन्ना। तेरा क्या ख्याल है, अपन उसको छोड़ देगा? अरे वो अगर अपन को इधर स्मगलर मशहूर करेगा तो अपन उसको हेरोइन का स्मगलर बनाएगा, उसको दहशतगर्द बनाएगा, उसको सारे कारोबार को हेरोइन में लपेट देगा। इसके लिए हमको यहूदी लाबी भी खरीदनी पड़ी तो अपन वो भी कर लेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं उसको। वाओ, साउंड्स वेरी गुड, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ा मजे का गेम है। ना, इसके लिए हम न्यूज़पेपर के ओनर्स को, ऑफिसर्स को खरीद सकते हैं। वी कैन डू दिस। फिक्र नहीं करने का है, बहुत सारा रोकड़ा एक तरफ करती है इसी काम के लिए। That's like my good father. सेठ मूसा है। अच्छा, सलाम सेठ। वालेकुम सलाम।
सिर्फ मैं मूसा करीम बॉम्बे वाला इधर का गवर्नमेंट इधर का पब्लिक मेरे को दादा बोलता है, भाई लोग बोलता है। तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या सेठ, अपन से गलती हो गया था। अपन घर में लोगों के नाम का सुपारी उठाता है, वो मैं छोड़ दिया था सेठ। बस लालच में आ गया, आपके बेटे के नाम का सुपारी उठाया मैं। उसके लिए मैं माफी मांगने के वास्ते आया। बाबा तुम्हारा गोली निशाने पे लग जाता तो तेरी माफी को हम गले में हार बना के डालता। बराबर बराबर बोला आप। क्या सेठ, मैं इधर में कुछ चल के आया। अगर आप मेरे को माफी दो तो ठीक है, वैसे मैं सजा का वास्ते भी तैयार हो क्या है। जिस काम से आए हो वो बताओ मूसा। क्या सेठ, इधर में मैं आपसे हाथ मिलाने का वास्ते आया है। सेठ, अगर आप बोलो तो मैं वो सेठ कादर को। हम उन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते मूसा। ये तुम लोगों के काम है, तुम्हें एक तरफ ही रहने दो। क्या सेठ, अभी खामोशी का जिंदगी गुजारना चाहता है, इज्जत का जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर मालूम मेरे को वो अंडरवर्ल्ड का भाई लोग ऐसा नहीं करने देगा, नहीं गुजारने देगा मेरे को वो खामोशी और इज्जत का जिंदगी। सेठ, आप बड़ा आदमी आए, वो शेख लोग से बात करो, मेरे को माफी दिलवा दो इधर अभी। खुद चाकर बड़े शेख से मेरा मूसा, हम इसमें नहीं आना चाहते। क्या सेठ, वो अगर आप उनके पास चला जाएगा तो वो लोग को मेरी बात पे ट्रस्ट आ जाएगा क्या? हम किसी की जमानत लेना नहीं चाहते। नहीं सेठ, जमानत नहीं मांगता है मेरे को। इधर में ऐसा हाथ चाहिए आपको मेरे को। मूसा करीम, तुमने हमारे इकलौते बेटे की जान लेने की कोशिश की है, हमारे इकलौते बेटे की। अभी हम उसे भूले नहीं है मूसा, और तुम हमारा एतबार मानने आए हो। मैं क्या बोलता है सेठ के जो मट्टी का चना होता है ना, ये भी कभी कभी काम में आता है। और मैं शेख मूसा करीम बॉम्बे वाला कभी भी आपका काम आ सकता है। तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया मूसा। 5 छालियां सुपारी, कुछ बाबा गनी चाय पूछो इससे। चलता है।
अरे बेटा, आओ बैठो। तुम तो हर वक्त बावर्ची खाने में लगी रहती हो। आपको पता है आंटी, ये नौकरों के हाथ के खाने का मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भाई तुमने तो मेरी भी आदतें बिगाड़ दी। इतनी लज्जत है तुम्हारे हाथ में कि मैं तो बहुत ज्यादा खाने लगी हूँ। कहाँ आंटी, बस इतना सा तो खाना खाती हैं आप। मैं तो सोच रही हूँ शिराज को होटल खोल लेना चाहिए। वो आंटी, मुझे याद आया कि बाबा सिंह मुझसे बात कर रहे थे कि मैं आपसे बात करूं। किस सिलसिले में? वो चाहते हैं कि शिराज अपनी नौकरी छोड़कर उनके कारोबार को संभाल ले। बेटा मेरे ख्याल में तो वो नहीं मानेगा। वो अपनी मुलाजमत से बहुत खुश है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। आंटी, बाबा साईं के इतने सारे कारोबार हैं, वो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। तुम उससे बात करके देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो बहुत खुश है अपनी सर्विस से। ठीक है आंटी, आप भी बात कीजिएगा, मैं भी बात करूंगी। हो सकता है कि मान जाए। चलो देख लेंगे। मैं देखती हूँ बेटा। हेलो जी, कौन साहब? हम कौन है और कौन नहीं, इससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ तो बताएं, आप कौन बात कर रहे हैं? नाम में क्या रखा है जी, बस यूं समझ लें कि आपके खादिम हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बेगम साहबा, बहू तो नहीं है आपके सामने। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? दरअसल बेगम साहबा, बात ही कुछ ऐसी है। शायद आपको पहले से पता हो, और क्यों नहीं पता होगा आपको, इतने बड़े सेठ के घराने में आपने बेटे की शादी की है। क्या बकवास कर रहे हैं? एक स्मगलर की बेटी को बहू बनाकर लाई हैं आप। पता तो होगा आपको। कौन स्मगलर? सेठ शाहनवाज से बड़ा ड्रग माफिया कौन होगा? ये दौलत, ये रेल पेल, क्या है ये सब? अब तो आप भी इसमें हिस्सेदार बन चुकी हैं। पहले वो आपके बेटे को अपने साथ शामिल करना चाहेगा, और अगर उसने इनकार कर दिया तो वो उसे मरवा देगा। बस यही मुझे आपसे कहना था। हेलो हेलो, हाँ बोलो, कौन है? ठीक है भेजो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सरकारी कर्ज है और हमारे पास तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करने का सर्च वारंट है। काय के लिए? ओके ओके जैसे ओके ओके। आई नो दैट यू आर राइट, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले जरा ऊपर बात करें तो। तुम किसके साथ बात करेंगे? ये सरकारी हुक्म है। या आई एग्री विद दिस, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। हमारे बिजनेस रिकॉर्ड एंड वी आर ऑपरेटिंग अवर बिजनेसेस फ्रॉम लास्ट 20 years। या हमको कुछ तुम्हारा फाइल्स देखने का है बस। बात सुनो, हमारा इधर कोई नंबर 2 का काम नहीं होता। किस बात पर शक है आपको? हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम तुम्हारा कागज फाइल साथ में लेके नहीं जाएंगे। तुम्हारा मौजूदगी में हम सब फाइल चेक करेंगे, लेकिन इसके दौरान तुम्हारा कोई आदमी इस ऑफिस के बाहर नहीं जाना मांगता है। ओके ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम तुम्हारा पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान और यूरोप का फैक्स और फेलेक्स का फाइल मांगता है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जल्दी चेक फाइल माले।
शिराज, इधर आओ जरा मेरे साथ। क्या बात है अम्मी? एक जरूरी बात करनी है अकेले में, इधर आओ। बेटा, मुझे ये बताओ कि शाहनवाज खान को तुम कितना जानते हो? अम्मी, उतना ही जानता हूँ जितना सारी दुनिया जानती है। उनका मेन बिजनेस शिपिंग का है और दुबई में और सारे भी बिजनेसेस हैं। शोहरत कैसी है उनकी? अच्छी है और कभी कोई स्कैंडल भी नहीं सुना। लेकिन बात क्या अम्मी? बेटा, एक फोन आया था। उसने अपना नाम नहीं बताया, मगर कहने लगा कि शाहनवाज खान एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ड्रग माफिया से ताल्लुक है उसका। ये सारी दौलत, ये शोशा, ये सब उसी की बदौलत है। और ये भी कह रहा था कि वो शिराज को अपने साथ शामिल करना चाहता है, और अगर वो ना माना तो उसे मार देगा। कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है? अंदर की बात तो अल्लाह ही जाने, मगर मेरे लिए तो ये बहुत परेशानी की बात है। अच्छा, आप इसका जिक्र आमना से मत कीजिएगा, मैं तहकीक करता हूँ। बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। बात यह है कि आज आमना ने भी मुझसे कहा कि उसके वालिद चाहते हैं तुम अपनी सर्विस छोड़ के उनके साथ शामिल हो जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ये दोनों बातें किसी तरह आपस में जुड़ी हुई मालूम होती हैं। इत्तेफाक भी हो सकता है। बहरहाल आप फिक्र मत करें। फिक्र कैसे ना करूं बेटा, एक शहीद की बेवा हूं। अल्लाह ना करे। ओहो अम्मी, प्लीज, कुछ नहीं होता। चलें आप, वरना उसको शक हो जाएगा। क्या बात है? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहा तो है बाबा, कुछ भी नहीं। तुम्हें वहम हो गया। कल से आप चुप चुप हैं, चुप चुप कर आंटी से बात कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? घर में आदमी घर वालों से 100 बातें करता है, ऐसी कौन सी बात? अगर ये घर की बात है तो फिर इसमें मुझे शामिल क्यों नहीं करते? आपका मेरा रिश्ता ऐसा है कि हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अगर छुपाएंगे तो फिर एतमाद कैसे होगा? अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसका ताल्लुक मुझसे है। आंटी भी चुप चुप है, कोई बात नहीं करती, ना पहले की तरह मेरे साथ बैठती है, ना ही मुझसे कुछ पूछती है। होगी कोई बात जो वो किसी से नहीं करना चाहती। मुझे तो लगता है कि मैं इस घर में मशकूक हो गई, बस एक सवालिया निशान बन गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आप में भी अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मैं जानना चाहती हूँ ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? असल में वो मुझे एक ऑफिस की टेंशन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि आपकी उलझन दूर हो जाए। आमना, हर बात नहीं बताई जा सकती। आखिर हम बंदों के अंदर भी तो तहखाने होते हैं ना, कि नहीं? अब तुम अपने आप से ही पूछ लो, क्या तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो? क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ बातें इंसान के अंदर ही रहनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर जरूरी हुआ तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। ओके? नाउ स्माइल।
हाय मासी जंदा, कितना अच्छा घर मिला है, किस्मत खुल गई है आपकी तो। बस अल्लाह साईं के काम है। आशा तो ऐश करती होगी, सुना है होटलों से खाने आते हैं, रोज शॉपिंगें करती है, जेवरात खरीदती है। हाँ, फरीद कभी कभी मेरे लिए भी बाजार से खाना ले आता है। खालका कहता है फरीद ने तो हमें छोड़ ही दिया, बात ही नहीं करता हमसे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी। अम्मा सलाम। अद्दी सकीना, अद्दी जिंदा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम कैसे रास्ता भूली? अम्मा तुमको तो पता है मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ। सारा दिन बाजार के चक्कर, पार्टियां, दावतें, सारा दिन उसी में गुजर जाता है। खानकी की बीवी से नहीं मिली, तेरी तो सही है। रहने दे अम्मा, इन सब को जानती हूँ मैं। जलते हैं ये अंदर से, दिन रात दुआएं मांगते हैं कब मेरे बुरे दिन आए। नहीं नहीं, ऐसा हमने कब सोचा। तेरा मियाँ खाल का और उसका भाई माल का पीर झंडे शाह के चक्कर लगाते हैं, सब रिपोर्टें हैं मुझे। गराए मेहमान को ऐसे नहीं कहते। अम्मा तुझे पता नहीं है, बड़े घुन्ने और मीसने हैं ये लोग। अब इनको ज्यादा मुंह ना लगा, इनको इनकी औकात में रख। इनसे अब तेरा मिलना जुलना अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कहते, सारी जिंदगी इन लोगों ने हमारा साथ दिया है। आशा बीबी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपके दुश्मन नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। अम्मा, अम्मा देखा है कैसे तंज कर रही है? मैंने तो तंज नहीं किया मासी चंदा, हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। बस कर, आते ही लड़ना शुरू कर दिया तुम। सब बस कर बीबी, गराए को कुछ नहीं कहते। मेरे खिलाफ तावीज जादू हो रहा है और मैं कुछ ना कहूँ। फिर झंडे शाह की कोई बात कभी पूरी भी हुई है? तुझे क्या पता अम्मा कब किसकी आ लग जाए, काली जुबानें हैं इनकी। मासी चंदा, मैं चलती हूँ। खामखा छेड़ा है इसको, गरीब लोगों से लड़ने का फायदा। अम्मा इन सब से कहो कि सीने पे हाथ रख के कहें कि इनको मेरी शादी की खुशी है। बंदा बशर है, हर एक तो यही सोचता है ना कि हमारी जगह उनकी किस्मत खुल जाती। बस कर अम्मा बस कर, आज फिर मुझे बोलने दे। मैं भी दरगाह पे जाऊंगी आज, मन्नत मानूंगी और दिया जलाऊंगी। इन सब के तावीजों का तोड़ है मेरे पास। बीबी जरा चलो, हवेली भी जाना है। जा जा, तू जाके होके आ। ठीक है बीबी, चलो। वो क्या हुआ है और क्यों रो रही है? बता। बैठ बैठ सकी ना, बैठ। कहाँ से आई है? बैठ बैठ। क्या हुआ तुम्हें? तो हमें बता ना। फरीद की बहन ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मुझे मेरी गरीबी के ताने दिए, बहुत जलील किया है मुझे। तू उसके पास गई थी? मासी जिंदा से मिलने गई थी, वो वहाँ आई थी। दौलत तो सर को चढ़ गई है और दोनों बहन भाई शौके हो गए। मैं अब फरीद को नहीं छोड़ूंगा, खान का चमचा अगर बहन की दौलत पर करता है। कहती थी तेरे मियाँ ने मुझ पर तावीज करवाए हैं। हाँ ये फिर हम उसे खुशी से तो नहीं रहने देंगे। देखना देखना उसका क्या असर होता है। तू आइंदा उसके घर नहीं जाएगी। मैं खान से खुद बात करूंगा। ओ बाजाई, आइंदा अगर उसने बात की तो खुल के सुनाना और डरने की जरूरत नहीं है। उसने हमारी आज औकात याद करवाई है, कहती थी तुम नीचो कमजोर हो। इसका सबक तो मैं इसके भाई को पढ़ाऊंगा। अब मेरी वजह से ना लड़े, बात बढ़ जाएगी। बात तो अब वैसे भी बढ़ेगी। आओ मान लिया। और कल के वो इस वक्त में नहीं मिलेगा, वो उसकी बहन जो आई हुई है।
پریشانی بی آپ مجھے بتائیں کیا دعا کرنی ہے؟ میں کرتی ہوں دعا آپ کے لیے. دعائیں بھی مجھ سے روٹ گئی. تم وقتوں والی ہو، شاید تمہاری دعا قبول ہو جائے. بی بی اللہ سائن سب کی دعا سنتا ہے، بس دل اور نیت صاف ہو تو دعا لگتی ہے. یہ تو ہم بدقسمت لوگوں کا آسرا. تمہیں کس شے کی ضرورت پڑ گئی؟ بندے کو دولت ہی نہیں اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اللہ تجھے لڑکا دے. اب تو بس یہی دعا باقی رہ گئی. اتنی بڑی جائیداد کا وارث ہونا چاہیے نا. اللہ سائن تمہاری دعا قبول کرے. اگر میری دعائیں قبول ہوتی تو تم ایسے اجڑی ہوتی. شانی بی بی اللہ سائن کی اللہ جانے، تم مجھ سے تو ناراض نہ ہونا. میں تو کسی سے ناراض نہیں ہوں، بس جی کا بوجھ ہلکا کرنے آ جاتی ہوں. نہ ہی کوئی سہیلی ہے، نہ ہی کوئی بات کرنے والا. یا اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں یا پھر یہاں جاتی ہوں. اللہ سائن تم کو بہت بڑے گھر میں بھیجے گا، بہت اچھے گھر میں بھیجے گا. میں ہر وقت دعا کرتی ہوں نا تمہارے لیے. بی بی میں تمہاری سیج پر بیٹھ گئی. اس میں بھی اللہ سائن کی کوئی رضا ہوگی. تم خوش ہو نا؟ ہاں جی. کیا کچھ نہیں ہے میرے پاس. اماں سے ملنے آئی تھی. آپ سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے. نہیں بس میں اب حویلی جاؤں گی، پھر وقت ملا تو آؤں گی. تم گل گل رچیا لگتے کرے جواب چو لگتے کرے جواب چو. ارے بخشو میں تیرے کو کیا بتاؤں بابا، چھوٹا خان تو مجھ کو اپنے سے الگ ہی نہیں کرتا ہے. بابا اب ضد کر رہا ہے میرے ساتھ دبئی چلو. بابا اب ہم بھی اس کے کچھ لگتے ہیں. یہ دیکھو 4 تولے سونے کی زنجیری، ابھی ایک آرڈر اور دیا ہے، ایک اور زنجیری کا. بابا اب ہم اونچی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، 5 اسٹار میں ڈنر ہوتا ہے. اور بابا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ مجھے بھی تو دکھا. اور تم کیا سمجھو گے؟ او پاگلو یہ الادین کا چراغ ہے. بابا یہ تو پلاسٹک ہے، الادین کا چراغ کیسے ہو گیا؟ یہی تو کمال ہے، آج کل الادین کا چراغ ایسا ہی ہوتا ہے. کیسے؟ اس میں جن نکلتا ہے کیا؟ ہاں جن نکلتا ہے پر نظر نہیں آتا. تو پھر پتا کیسے چلتا ہے کہ جن نکلا ہے؟ بابا جن کا کام کیا ہوتا ہے بلا؟ جو مانگو وہ لے کر آتا ہے. وہ تو ہے. بابا اس کارڈ کو جس کو ہم ویزا کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہر شے لے کر آتا ہے. کیسے؟ جو بھی مانگو؟ ہاں جو بھی مانگو، موٹر، بنگلہ، کار، سونا. عائشہ بس یہ مجھے دے گا؟ ارے واہ صحیح، اللہ دین کا چراغ بھی کوئی کسی کو دیتا ہے کیا؟ تو اس میں کیا کہہ لے گا؟ بابا جو میں چاہوں سب لے سکتا ہوں. اگر ہو سکے تو اس سے تھوڑی غیرت بھی خرید لے. اور خلکے کیا بولتا ہے؟ کیا ہوا ہے تجھ کو؟ بس بولنا نہیں. خان کے چمچے بہن کی دولت پر کرتا ہے. یہ جنجیری تیرے گلے میں ڈال کے تیرا حساب کر دوں گا. خان کے پٹے باندھ کے کتے ہم پہ باندھتا ہے. اور میں خان کو کہہ کے تجھے علاقے سے نکلوا دوں گا. جان بنے میں خان کا سالہ ہوں. پتہ ہے کہ تو خان کا سالہ ہے.
मेरी बहन ने आज मेरी बीवी को बड़ा बेइज्जत किया। उसको बोल दे कि अगर उसने आइंदा ऐसी जुर्रत की ना तो मैं खान से शिकायत कर दूंगा। और वो अब मेरी बहन नहीं, खान की घर वाली है। और जुबान संभाल कर बात कर। जानता नहीं हम कौन है? हमारा ही खाता है और हम ही पे भोंकता है। तू तो खुद उनके टुकड़ों पे पलता है। तेरी आने दे खान को, बताता हूँ तुझे मैं। ओए, क्या होएगा ओए? ओए खान की तड़ी क्यों लगाता है तू? तेरा खान कोई बंदे खाता रहता है? बड़ा शोखा बना फिरता है। चल भाग इधर से, चल। देख अभी होता क्या? अरे हल खान का साला बना फिरता है। खान का साला नहीं तो अब अपनी औकात में रहेगा। तुम अकेले क्यों आई हो? शिराज क्यों नहीं आया? बाहर छोड़कर चले गए हैं, बस हमें कोई काम। ये कोई बात है? सलाम की फुर्सत नहीं उसको? उसकी मर्जी नहीं होगी ना, क्या कर सकती हूँ मैं? सलाम दीदी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपना काम करो। दीदी साईं, हम बीवी से मिलने आए हैं। मिल लिया ना? चलो अब जाओ, जाओ बस। आमना बेटी, अब बताओ मुझे क्या बात है? तुम खुश नहीं लग रही हो। शिराज का सुलूक तो अच्छा है। अम्मा किसी की नजर लग गई। पहले तो बहुत खुश खुश रहते थे, लेकिन अब चुप चुप से रहते हैं। मुझसे कोई बात नहीं करते, कुछ छुपाते हैं मुझसे। पगली, होगी कोई बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे तो तुमने डरा दिया था। इस शक और शुबे के माहौल में मां कोई कैसे रह सकता? तो बात करनी थी ना। क्या बात करूं? मुझे तो कुछ बताते नहीं। फिर कुछ नहीं होगा। कुछ तो है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बाबा साईं के मुतालिक उनसे कोई बात की है। उनके बारे में कोई क्या बात करेगा? उनको तो सब जानते हैं। हो सकता है कोई उल्टी सीधी बात करती हो, क्या पता। अगर तू कहती है ना, तो मैं जीनत से खुद बात करती हूँ। नहीं अम्मा, अभी तुम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देखती हूँ। तेरे साथ सुलूक तो अच्छा है ना? सब खुश है मुझसे। आमना बेटी, बात दिल में रहे तो जड़ी पकड़ लेती है। उसे जंगली बूटी की तरह उखाड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। बोल दे जो अब तक है। मैंने तो कितनी बार पूछा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताते। वक्त का इंतजार करो और सुनो, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन पर बता दिया करो। बजाई नजर नहीं आ रही है, हवेली गई है क्या? अपनी माँ से मिलने गई है, आ जाएगी 1-2 दिन में। हेलो जी, कौन? हम वही हैं बेगम साहिबा। अब तो आप हमारी आवाज पहचानती होंगी। कौन है आप? नाम क्या है आपका? देखिए, मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगी। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं बेगम साहिबा, और आप हमें धमकी दे रही हैं। तो फिर छुपते क्यों हैं? नाम बताएं अपना। ओ जी, नाम में क्या रखा है? ABCDEFGHYZ। देखें मिस्टर XYZ, आप बताएं आपको काम क्या है और कौन है आप? आपको ये बताना है कि आप अपने बेटे की हिफाजत कर लें। अनकरीब एक रिपोर्ट शाया होगी शाहनवाज के खिलाफ, और उसमें यह होगा कि शाहनवाज किस तरह ड्रग माफिया का चीफ बना और कैसे वो शिराज के आड़ में यहां से हेरोइन यूरोप स्मगल करता रहा। तब आप हमारी बात मानेंगी। मगर
आप हैं कौन? आप सामने क्यों नहीं आ रहे? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम सामने आ जाएंगे। जब तुम्हारे बेटे की लाश सामने आएगी फिर हम भी आपके सामने आ जाएंगे। वो बात करो, वही है। हेलो हेलो, बंद कर दिया। फिर वही बातें कर रहा था कि आपके बेटे की जान को खतरा है और शाहनवाज जो है वो आपके बेटे की आड़ में हेरोइन बाहर भेज रहा है। मुझे लगता है कि कोई साजिश कर रहा है। तुम शाहनवाज से बात क्यों नहीं करते? अब तो लगता है कि बात करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं कि फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवा लेते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? शाहनवाज से तो बात करनी ही होगी। वो कौन सा मानेंगे जो वो करते हैं। फिर भी बात करके देख लेता हूं। ऐसा तो नहीं कि ये सब झूठ है? हो सकता है कि ये सब सच है।